प्रसादम अधिगच्छति। प्रसादम अधिगच्छति। आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। But a person free from all attachment and aversion and able to control his senses through regulative principles of freedom can obtain the complete mercy of the Lord. थैंक यू। तो हम इसके पहले देखते थे कि कैसे फॉल डाउन शुरू होता है। फॉल डाउन शुरू होता था कंटेम्पलेशन से। हम सेंस ऑब्जेक्ट पे कंटेम्पलेट करते तो उससे होता अटैचमेंट, अटैचमेंट से होता लस्ट, लस्ट से होता है एंगर, डिलूजन, डिलूजन bewilderment of memory, and उसके बाद intelligence is lost, and when intelligence is lost one falls down again to the material pool। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा टॉपिक चेंज हुआ कि but a person free from all attachment and aversion and able to control his senses through regulative principles of freedom। ये regulative principle of freedom मतलब भक्ति का जो नियम है उसको पालन करना। इसमें 4 regulative principles भी हैं। Then he can obtain the complete mercy of the Lord। तो भगवान का कृपा कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? प्रसादम अधिगच्छति। प्रसाद मतलब भगवान का कृपा। तो ये प्रसाद किसको मिलता है? तो ऐसे व्यक्ति को मिलता है जो राग द्वेष विमुक्तस्तु, राग और द्वेष से विमुक्त हो गया है। इज फ्री फ्रॉम ऑल अटैचमेंट एंड अवर्जन। ना किसी चीज से राग है, ना किसी चीज से द्वेष है, ना अटैचमेंट है, ना आवर्जन है, दोनों से मुक्त है। and is able to control his senses through regulative principles of freedom। तो वो भक्ति के नियमों के द्वारा अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखा है, तो वो भगवान का को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ये रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम मतलब रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है। जो को रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं सेंस कंट्रोल करते हैं। और इसमें लिखा था कि हम भगवान का भक्ति करते हैं तो भगवान के लिए या हमारे भक्ति के लिए जो फेवरेबल है वो करते हैं, जो फेवरेबल है वो नहीं करते हैं। तो इसलिए हम किसी भी चीजों से, जो भी अच्छा हो या बुरा हो, किसी से हम अटैच नहीं होते, किसी से अवर्स नहीं होते। यस, इसका पढ़ेंगे। क्या मंत्र थ्रू आप पढ़ सकते हैं? Yes, Prabhu. It is already explained that one may externally control the senses by some artificial process, but unless the senses are engaged in the transcendental service of the Lord, there is every chance of a fall. Although the person in full Krishna consciousness may apparently be on the sensual plane because of his being Krishna conscious, he has no attachment to sensual activities. The Krishna conscious person is concerned only with the satisfaction of Krishna and nothing else. Therefore, he is transcendental to all attachment and detachment. If Krishna wants, the devotee can do anything which is ordinarily undesirable. And if Krishna does not want, he shall he shall not do that which he would have ordinarily done for his own satisfaction. Therefore, to act or not to act is within his control, because he acts only under the direction of Krishna. This consciousness is the causeless mercy of Lord, which the devotee can achieve in spite of his being attached to the sensual platform. हाँ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हम भगवान का कृपा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं या कृपा प्राप्त हो कैसे समझ सकते हैं? तो ये पहले बताया गया कि one may externally control the senses by some artificial process, but unless the senses are engaged in the transcendental service of the Lord, there is every chance of fall। तो हम आर्टिफिशियली सेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर वो भगवान का सेवा में नहीं है तो फॉल डाउन हो सकता है। लेकिन हम भगवान का सेवा में अगर सेंसेस को लगाए हैं तो फॉल डाउन होना मुश्किल है, बहुत नहीं है, मतलब फॉल डाउन नहीं होगा। Although the person in full Krishna consciousness में apparently बाहर से दिखने में कभी लगता है कि जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित है, is in full Krishna consciousness, सही में apparently be on the sensual plane, मतलब देख के लगता होगा कि वो भी तो सेंस ग्रेटिफाई कर ही रहा है। Because of his being Krishna consciousness, he has no attachment to sensual activity। लेकिन उसको अटैचमेंट नहीं है
तो भक्ति के लिए जो जरूरत है वो काम करता है, मतलब जो भी खाना सोना ये भी तो सेंस ग्रेटिफिकेशन ही है, लेकिन जो शरीर को अच्छा रखने के लिए, क्योंकि शरीर भक्ति के लिए साधन करने के लिए, को हेल्दी रखने के लिए, या फिर कोई अगर भक्ति की करते हैं तो बाहर देखने में लग रहा है कि कोई भी एक्टिविटीज में, जैसे परचेजिंग में जाते हैं, डिवोटी कुकिंग करते हैं, कंस्ट्रक्शन में लगे होते हैं, तो सब कुछ तो है, लेकिन वो भगवान के लिए लगे हुए हैं ऐसे, तो उनसे उनको कोई अटैच, आगे आप बता रहे थे कि जो कृष्णा कॉन्शियस पर्सन है, ही इज कंसर्न, वो केवल भगवान का ही संतुष्टि चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। देयरफॉर ट्रांसेंडेंटल टू ऑल अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट, तो किसी तरह से राग या डिटैचमेंट या अटैचमेंट दोनों ही रहते हैं। अगर भगवान चाहते हैं, इफ कृष्ण वांट्स, द डिवोटी कैन डू एनीथिंग विच इज ऑर्डिनरली अनडिजायरेबल, तो अब वो जो नहीं करने वाला चीज है वो भी, अगर वो जानता है कि भगवान का इच्छा है, करता है, एंड डज नॉट ऑर्डिनरली सेटिस्फैक्शन, तो यहाँ के डिजायर पे है, चाहे ही भी करेंगे, चाहे कैसे करेंगे, नहीं करते, तो ये भगवान की इच्छा के द्वारा कंट्रोल हो रहा है सेंसेस, तो सेंसेस का फॉल्ट गलत चीज में नहीं है। Therefore, to act or not to act is control. satisfaction लेकर रहा नहीं, वॉइस क्रैक हो रहा है, स्क्रीन दिख रहा है सबको, इंटरनेट का कुछ होते रहता है। Therefore, to act or not to act is within his control because he acts only under the direction of Krishna. तो ये क्योंकि कंट्रोल करने वाले भगवान है, भगवान का इंस्ट्रक्शन है शास्त्रों के द्वारा, गुरु के द्वारा, साधु के द्वारा। दिस कॉन्सियसनेस इज द कॉम्प्लेक्स मर्सी ऑफ द लॉर्ड। तो अगर हमारा ये चेतना हो जाए कि हम भगवान के लिए या भक्त के लिए जो करे वो करेंगे, जॉन रिजेक्ट कर देंगे, तो ये कॉन्सियसनेस आ जाएगा, तो ये हमको समझना चाहिए कि ये भगवान का आहे तो की कृपा है। दिस कॉन्सियसनेस मर्सी ऑफ द लॉर्ड which the devotees can achieve in spite of his being attached to the sensual platform। तो हो सकता है कि भक्ति इधर ही है, दुनिया में ही है, लेकिन क्योंकि भगवान की कृपा से वो ऐसा कॉन्शियसनेस में आ गया है कि अगर भगवान का इच्छा है तो करेंगे, भगवान का ये इच्छा है तो हम ये करेंगे, भगवान का इच्छा है कि ये नहीं करना है तो हम ये नहीं करेंगे। तो हम देखते हैं मटेरियल प्लेटफॉर्म पे भी लोग करते हैं, किसी से अटैचमेंट होता है तो कोई पर्सन से अटैचमेंट होता है तो उनको खुशी के लिए करते हैं, जैसे बच्चे के लिए माँ मदद करती है, तो और अटैचमेंट होता है तो उनके लिए कुछ भी सुख दुख सहते हैं, वैसे हमारा अटैचमेंट अगर भगवान से हो जाएगा तो ये बेस्ट है। तो हम फिर भगवान की इच्छा से और भगवान के इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही मतलब एक्ट करेंगे, सेंस को लगेंगे, तो हमारा सेंस कंट्रोल रहेगा। और ये आना बहुत, तो ये कॉन्शियसनेस अगर नहीं आ रहा है उनको करना चाहिए, और ये कॉन्शियसनेस जिनके पास है भगवान का, अभी देखो हम सेंसर प्लेटफॉर्म में होके भी ऐसा हम प्राप्त कर सकते हैं, तो मतलब वो है, इनको भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। लोग मेरे कौन कोई दूसरी विभू, विभू दत्ता पानी कही, आवाज क्रैक तो होता रहे। तो विभू प्रू है, ठीक है विभू प्रू, मेरे बात लोग रिपीट कर सकते हैं आप, अनम्यूट करो। अरे सर, तो मेरा आप नेटवर्क अच्छा अनम्यूट नहीं किए हो। आ रहा है अभी विभू? हरे कृष्ण सर। एक मिनट, हाँ अभी आ रहे हैं।
प्रसादे सर्व दुख प्रसादे सर्व दुःखानां प्रसादे सर्व दुःख हानिरस्योपजायते अनिरस्यो हानिरस्योपजायते अनिरस्योपजायते प्रसन्नचेत प्रसन्नचेतेषु प्रतिष्ठते। मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है, उनका हो रहा है। कुछ तो हुआ अभी मिला क्या सबको प्रूफ? आ रहा है क्या लिख क्या? हरे कृष्णा। ये कुछ रिस्पॉन्स क्यों नहीं आता? हरे कृष्णा सर। अरे भाई पूछ रहा हूँ, आवाज आ रहा है क्या? कोई कुछ बोल नहीं रहा है, स्क्रीन दिख रहा है क्या? कोई कुछ बोल नहीं रहा है। क्या करूँ? ठीक है, ये श्लोक भी आप याद कर सकते हो। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। प्रसाद से सारे दुख का हानि हो जाता है। ठीक है, तो भगवान का प्रसाद मिलेगा तो क्या होगा? सब दुखों का हानि हो जाएगा, सारा दुख खत्म हो जाएगा। प्रसादे, प्रसाद से सर्व दुखानाम, सारे दुखों का हानि हानि हो जाता है, सारा दुख खत्म हो जाता है। ठीक है, रास से ऊपर जाता है मतलब इससे उत्पन्न होता है प्रसन्न चेतसा। चित्त प्रसन्न हो जाता है, हृदय खुश हो जाएगा, मन खुश हो जाएगा। आंसू मतलब तुरंत। और बुद्धि परिवर्तिष्ठते मतलब बुद्धि भी प्रतिष्ठित हो जाएगा। तो इधर पहले वाला श्लोक में था भगवान का प्रसाद कैसे मिलेगा, फिर इधर है कि प्रसाद मिलने से क्या क्या होगा, कैसे मिलेगा। तो हम राग और द्वेष से फ्री होके आप इंद्रियों को अपने वश में रखेंगे तो हमको भगवान का स्पेशल कृपा प्रसाद मिलेगा। और भगवान कृपा मिलेगा या प्रसाद मिलेगा तो प्रसाद से क्या होगा? सभी दुखों का हानि हो जाएगा और चित्त प्रसन्न हो जाएगा और बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाएगा। For one thus satisfied in Krishna consciousness, the threefold miseries of material existence exist no longer. In such satisfied consciousness, one's intelligence is soon well established. तो ये श्लोक आप याद कर सकते हैं। इस श्लोक का कोई रिसाइट करेंगे देख के? प्रमोद प्रूफ। ओके, विभू बोलेंगे। विभू प्रूफ बोलो हरे कृष्णा। यस। पूरा श्लोक बोलो। बोलिए प्रमोद प्रसाद प्रूफ। नया हाथ। विभू बोलो। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतेषु यशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। हाँ, तो इसका सीधा सीधा मीनिंग है कि प्रसाद से सारे दुखों का हानि हो जाता है, चित्त प्रसन्न हो जाता है और बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाता है। ठीक है, तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखेंगे तो ऐसा प्रसाद मतलब ऑन अचीवमेंट ऑफ द काउंटलेस मर्सी ऑफ द लॉर्ड। भगवान का जब आयु की कृपा मिल जाएगा तो
सर्व दुखानाम, ऑफ ऑल मेटेरियल मिजरीज, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, हानि हो जाएगा। और प्रसन्न हैप्पी माइंडेड हो जाएगा। तो क्या क्या होगा, सारा दुख खत्म हो जाएगा, मेटेरियल मिजरीज खत्म हो जाएगा, मन खुश हो जाएगा, एंड वेरी सुन इंटेलिजेंस बिकम स्टैब्लिश्ड, बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाएगी। ठीक है, तो प्रसाद चाहिए आपको, इसलिए सबको प्रसाद खाना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक मेरे बाद कौन रिपीट करेंगे? अच्छा, टुडे 60th एनिवर्सरी ऑफ इस्कॉन। प्रमोद है। ओके, कंचन मेरे बाद रिपीट कर सकते? हाँ भैया। बोल। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य, न चायुक्तस्य भावना, न चायुक्तस्य भावना, न चाभावयतः शान्तिर्, न चाभावयः शान्ति, अशान्तस्य कुतः सुखम्। अशान्तस्य कुतः सुखम्। धन्यवाद। तो न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य, युक्त नहीं है, जो भगवान का भक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है, उसका क्या होगा? नास्ति बुद्धि। तो इसका ये मतलब है कि नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, युक्त मतलब कनेक्टेड, मतलब जो नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, जो युक्त नहीं है उसके पास बुद्धि नहीं होगा। न च युक्तस्य भावना, जो युक्त नहीं है उसके पास तो भावना माइंड इन हैप्पीनेस, तो उसका मन में प्रसन्नता नहीं रहेगा। तो जो भगवान से जुड़ा हुआ नहीं, जो भक्ति में नहीं लगेगा, उनके पास ना कुछ नहीं है रहेगा, शांति नहीं है, वो अशांत है। तो अशांत सुखम, जिसके पास शांति नहीं उसके पास सुख कहाँ से आ, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। तो जो भगवान के भक्ति में नहीं लगा है उसके पास बुद्धि नहीं है, उसके पास माइंड उसका फिक्स नहीं रहेगा। माइंड उसका फिक्स नहीं रहने से वो शांत रहेगा, शांत नहीं रहने से उसके पास कुछ सुख नहीं रहेगा। बट कौन पढ़ेंगे? उत्साह, उत्साह थोड़ा दिक्कत होता है, सीधा क्यों पढ़िए। प्रभु मैं स्क्रीन नहीं देख सकता। हाँ अभी इट इज विजिबल। अनलेस वन इज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ पीस. So it is confirmed in the 5th chapter 5.29 that when one understands that Krishna is the only enjoyer of all the good results of sacrifice and penance, that he is the proprietor of all universal manifestation, and that he is the real friend of all living entities, then one can, then only. प्रभु आई स्क्रीन नहीं दिख रही है। यस प्रभु, स्क्रीन विजिबल नहीं है किसी को। कैसा करेंगे? नेट इतना स्लो होता है। शेयर करता हूँ। मैं शेयर करूं क्या आपको?
कुछ नहीं दिख रहा है? कृष्णा बलराम दिख रहे हैं। कृष्ण और नाम दिख रहा है ना, और क्या चाहिए? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, और कुछ नहीं चाहिए। जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय वृंदावन राम। 166 पढ़ रहे हैं। प्रभु मैंने अपने लैपटॉप में पेज खोला है, मैं वहां से पढ़ सकता हूँ। वो एक ही स्क्रीन में पूरा है आपको। ओके 266। Yes. नहीं, मेरा कृष्ण प्रभु जी आपका वॉइस भी नहीं आ रहा है। कोई और स्क्रीन लाइक सिद्धार्थ प्रभु शेयर कर सकते हैं स्क्रीन, हम पढ़ सकते हैं। मेरे से क्या दिक्कत है? स्क्रीन दिख नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा है। हाँ प्रभु दिख नहीं रहा है, अभी दिख रहा है लेकिन फिर नेटवर्क अनस्टेबल होने के बाद वो फिर चले जाएगा। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी दिख रहा है। सबको दिख रहा है क्या स्क्रीन? स्क्रीन दिख रहा है सर। यस प्रभु। तो आप पढ़ो। चले गया प्रभु ठीक है, फिर बिल्कुल से। मैं पढ़ता हूँ। बिल्कुल मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, स्क्रीन सबको दिख रहा है ना? मैं पढ़ता हूँ। सबको दिख रहा है ना? कैसे हो रहा है? आवाज गूंज रहे हैं प्रभु। हाँ, ओके। Unless one is in Krishna consciousness, bro, there is no possibility of peace. समझ रहे कि नहीं आप? So it is confirmed in the 5th chapter. देखो, भगवान इधर बता रहे थे कि किसको शांति नहीं मिलेगा। bro, इधर बता रहे किसको शांति मिलेगी। भगवान इधर बताया कि जो भक्ति में नहीं लगा है उसका पास ना तो दिव्य बुद्धि है, ना माइंड फिक्स रहेगा। माइंड उसका फिक्स नहीं रहने से उसके पास शांति नहीं रहेगी, और शांति जिसके पास नहीं है उसके पास सुख तो हो ही नहीं सकता। और प्रभुपाद जी इधर पर्पण में बता रहे हैं पीस फॉर्मूला 5.29। ये हम आगे पढ़ेंगे 5th चैप्टर में 29। इसमें ये शंकर सिन्हा अधिकारी तीनों गाना भी लिखे हैं, सॉन्ग इंग्लिश में। उन्होंने उधर प्रेसिडेंट को भी सुनाया था, प्रपोजल दिया था पीस फॉर्मूला के लिए। तो जब तक कोई व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ पीस। इसलिए भगवत गीता का 5.29 में बताया गया पीस फॉर्मूला। पीस फॉर्मूला क्या है? प्रमोद को आप श्लोक सुनाएंगे 5.29। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सूर्धम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। थैंक यू ब्रो। तो ये है पीस फॉर्मूला, शांति कैसे मिलेगा। तो भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो जो भी हम यज्ञ तपस्या करते हैं, जितना भी हम मेहनत करते हैं, वो सबका एंजॉयर हम नहीं है। ये भगवान बोलते हैं कि मैं हूँ। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। जितने भी लोग हैं, जितने भी देवता है, जितने भी प्लैनेट्स है, सबका मैं मालिक हूँ, भगवान बोल रहे हैं। और सूर्यदम सर्वभूतानाम, सारे जीवों के सूर्य है, सबसे बेस्ट फ्रेंड है कृष्ण। तो सोचो, एक कोई ऐसा व्यक्ति जो पूरा दुनिया का मालिक है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक है, जो सबसे बड़ा एंजॉयर है, और वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है। तो ये बस जान लेने से ही शांति मिलता है। ये पीस फॉर्मूला है। तो इसको जितना हम ज्यादा जानेंगे उतना ज्यादा पीसफुल रहेंगे। So that when one understand that Krishna is the only of all good results of sacrifice and penance, that he is the of all manifestations, and that he is the real friend of all living entities. तीन चीज है। He is only enjoyer, real enjoyer तो है, he is the only enjoyer, और हम और कोई भी नहीं है। उसके बाद भगवान ही प्रोपराइटर है सारे
मैनिफेस्टेशन का मतलब सारे यूनिवर्सेस का, सारे प्लानिटरी सिस्टम का, सारे प्लैनेट्स का, और उनके जो प्रिसाइडिंग डेटी सारे डेमिगॉड्स सबका, और वो हमारे रियल फ्रेंड भी हैं। तो ये हम अगर जानेंगे, देन ओनली वन कैन हैव पीस फॉर्मूला। इफ वन इज नॉट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, देयर कैन नॉट बी अ माइंड। तो मन so of तो माइंड क्योंकि तो एक अल्टरनेटिव चाहिए उसको, तो लक्ष्य मन फिक्स रहेगा तो शांति होगा। तो इस पे क्योंकि मन हमारा अल्टीमेट गोल में जो कि भगवान है, एंड वेयर इज सर्टेन इज एंजॉय प्रोप्राइटर एंड फ्रेंड एंड विद स्टडी अबाउट दिस। तो हम जब ये तीन समझ जाएंगे, एंजॉय है कृष्णा इज एंजॉय प्रोप्राइटर एंड कृष्णा इज ऑफ एवरीवन एंड एवरीथिंग, शांत हो जाएगा और हम वो करेंगे विदाउट रिलेशनशिप विदाउट पीस। अभी ऐसे बेचैन रहेंगे और बिना तो अगर में मेक को इस तरह का दिखाते हैं खुशी होते हैं में तो एडवांसमेंट भगवान ने वो उसे जीवन में नहीं रह सकता है। कितना कोई भी सोशल मीडिया पे करे in a peaceful condition which can be achieved only in relationship with Krishna। तो भगवान के संबंध जोड़ेंगे तब हम शांति पा सकते हैं और खुशी पा सकते हैं। ठीक है, तो यहीं तक हम आज पढ़ेंगे। टाइम 8:32 हो गया, हम 2 मिनट आगे भी चले गए। किसी को कुछ बोलना है?